Hi, good morning and namaskar dosto. My name is Tajinder Singh Nagpal and I'm a finance and insurance professional. And my today's topic is Keyman Insurance, how the company can save their taxes and give benefits to its employee. So let's start the topic. Uh, Let's start today's topic, Keyman Insurance. So today's topic is Keyman Insurance. First, we'll start with the concept. In every organization, there are few key person who runs the show. They are pillar of the organization. Any unfortunate event such as sudden death of a key person may result in temporary or even permanent loss to the organization. Every company requires protection against financial loss such as liability, recruitment and training cost. So what is exactly the कीमैन इंश्योरेंस? The कीमैन इंश्योरेंस यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई ना कोई एक स्पेशल पर्सन होता है, एक स्किल्ड पर्सन होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है, राइट? सो ही इज द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. In case of unfortunate death of that key personnel, company may suffer a टेम्परेरी और ए परमानेंट लॉस, राइट? मतलब उसके ना होने से कंपनी को कुछ लॉसेस हो सकते हैं. तो उस लॉसेस को कवर अप करने के लिए कीमैन इंश्योरेंस का कंसेप्ट को लॉन्च किया था, राइट? So every company requires protection against the financial loss such as liability, recruitment and training costs. Let's move further. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कीमैन इज ए स्पेशल पर्सन जो कि क्राउड का पार्ट नहीं है. लाइक ही गॉट ए स्पेशल स्किल जिससे कंपनी रन कर रही है. सो हु इज कीमैन? Let's discuss who is the keyman. Anybody with specialized skills whose loss can cause financial strain to the company is eligible for keyman insurance. जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कीमैन क्या है. कीमैन एक स्पेशल पर्सन है, स्पेशली स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर स्किल्स में, जिसके होने से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशंस में फर्क पड़ता है. ही इज एलिजिबल फॉर कीमैन इंश्योरेंस. It can be any employee, director, or any other person in a key position whose survive have significant effect on the profitability of the organization due to his technical skill, industry knowledge, wide vision, or market image. Right? Typically, example of key man person: MD, CEO, director, project managers, partners, etc. Like I'm working with Future Generali Life Insurance Company, and here we have MD and CEO. So they are the key person. अगर वो नहीं होते हैं कंपनी में तो कंपनी कैन में इनकर ह्यूज लॉस. तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने स्किल्ड पर्सन का इंश्योरेंस करता है, राइट? सो व्हाई कीमैन इंश्योरेंस? Sudden death of a key person creates a vacuum in an organization as it can affect the following. राइट? अगर की पर्सन जो पूरी कंपनी को चला रहा है, जिसके स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग एंड विजन की वजह से कंपनी प्रॉफिट में है आज, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, अगर कुछ भी हमारे की पर्सन को होता है तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को टाइम लग सकता है कि नए की पर्सन को सर्च करके उस लेवल तक लाने के लिए. तो कंपनी क्या करती है? इस लॉस को कवर करने के लिए कीमैन इंश्योरेंस करा लेती है. Let's move further. The death of the employee can incur two types of losses to the company, right? First loss is loss arising from profit reduction for the company. तो अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है कीमैन के साथ तो कंपनी का बिजनेस सेल्स, बिजनेस मोमेंटम, गुडविल, क्रेडिट ऑफ द कंपनी और जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं वो प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकता है, जिससे कंपनी लॉस इनकर कर सकती है, राइट? और इंक्रीज इससे कंपनी की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी बिकॉज कंपनी हैज टू फाइंड न्यू कीमैन पर्सन या न्यू रिप्लेस, उसकी जगह रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा. उस रिप्लेसमेंट से कंपनी को कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी. उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने कीमैन का इंश्योरेंस कर लेती है, राइट? So what are the advantage of keyman insurance? In case of company has keyman insurance, on death of the employee, the sum assured is paid to the company, right? अगर कीमैन को कुछ हो जाता है तो कंपनी ने जो उस कीमैन का इंश्योरेंस कराया है उस इंश्योरेंस के सम एश्योर्ड से
कंपनी अपने लॉस को कंपनसेट कर लेती है, राइट। द सम एश्योर्ड इज जनरली क्वाइट लार्ज एंड सफिशिएंट टू टाइड ओवर एनी बिजनेस डाउनटाउन। जो सम एश्योर्ड होता है वो जनरली इतना बड़ा होता है कि कंपनी उससे अपने लॉसेस को कवर कर लेती है, और कंपनी कैन हायर ए न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव आल्सो। If insured person survive the term of insurance, then no money is paid to the company. अगर insured person survive कर जाता है ड्यूरिंग दैट पीरियड, जितना टाइम का हमने इंश्योरेंस लिया है, तो कंपनी वोंट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट, बिकॉज जैसे कि हमने बताया कि ये कंपनी के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर कीमैन सर्वाइव कर जाता है तो कंपनी वोंट गेट एनीथिंग, राइट। और इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी कंपनी प्रीमियम पे कर रही है वो प्रीमियम कंपनी अपने लॉसेस में दिखा के इनकम टैक्स की छूट ले सकती है अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ ITI, राइट। लेट्स मूव फर्दर। मैंने यहाँ थोड़ा चार्ट से समझाने की कोशिश की है। कंपनी कैन प्रोटेक्ट देयर लायबिलिटी, कंपनी प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस, प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, प्रोटेक्ट प्रॉफिट एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। We have already discussed these points, so there is no use to go in details. So let's move further. So now question arise, how to determine sum assured? हम किसी कंपनी अपने कीमैन का कितना इंश्योरेंस ले सकती है, उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसको डिटरमाइन करने के लिए तीन तरीके हैं, जिन तीन मेथड्स को आप यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं उसका सम एश्योर्ड। फर्स्ट है 3 times ऑफ एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 3 years। तो ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट 3 साल में जितना भी प्रॉफिट कमाया है, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है, उसका 3 गुना। सपोज कंपनी का प्रॉफिट 1 CR है, तो 1 CR इंटू 3 इज 3 CR का सम एश्योर्ड आप अपने कीमैन को ऑफर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज 5 times ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 5 years। तो पिछले 5 सालों में जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है उसका 5 टाइम्स। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस को माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। तो 5 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट भी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज 10 टाइम्स ऑफ एनुअल कंपनसेशन इंक्लूडिंग सैलरी, बोनस एंड अदर परक्विजिट्स। सपोज जो भी हमारे कीमैन है, कीमैन का जो भी CTC होगा उसका 10 टाइम्स भी आप ले सकते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा हमें ऑप्ट करना है? हमें इसमें विच एवर इज लीस्ट वुड बी एप्लीकेबल एज ऑफर सम एश्योर्ड। I hope I'm clear. So now tax benefit. Premium paid by the organization for the Keyman insurance policy would be treated as a allowable as deduction under section 37(1). I have already discussed कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कीमैन के लिए जो भी प्रीमियम पे करेगी, वो प्रीमियम अंडर सेक्शन 37(1) में टैक्स की छूट मिलेगी, राइट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने खर्चों में दिखा सकता है। Premium paid by the organization is not treated as a perquisite in hand of key person under para 5 of section 17(2) of Income Tax Act, since he is not getting any benefit out of it. Section 17 जो हम लोगों को IT Act में डिफाइन करता है, वो ये कहता है कि जो भी किसी भी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन से या एम्प्लॉयर से जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं दैट इज perquisites, राइट। यहाँ पे कीमैन को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिकॉज जो कंपनी है वो इंश्योरेंस अपने लिए ले रही है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले रही है। सो यहाँ पे कीमैन को कहीं भी ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा और परक्विजिट्स का पार्ट नहीं होगा, राइट। I hope I am clear. The maturity received by the organization due to death of a key man will be added to the total business of the organization and shall be taxed accordingly. अब इस पॉइंट में ये कहते हैं कि कंपनी जब प्रीमियम पे कर रही है तो उसको लॉस में मान रही है, खर्चे में काउंट कर रही है एंड इनकम टैक्स में छूट ले रही है। तो इन केस ऑफ डेथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कीमैन की, और अगर कंपनी को जो उसका सम एश्योर्ड मिलता है, उस सम एश्योर्ड को कंपनी की बिजनेस इनकम का पार्ट माना जाएगा, राइट। और वो टैक्सेबल होगा कंपनी के एंड पे। नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी में जो मेच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट मिलता है दैट इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10(10)(d), बट यहाँ पर 10(10)(d) इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज कंपनी इसको एक्सपेंसेस में काउंट कर रही है एंड इनकम एंड मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट ऑल्सो would be counted as a business income only, right? Now there are few restrictions. अब कुछ इसमें restrictions हैं। restrictions ये है कि only term plan is allowed, because यहाँ पर हम protection के लिए plan ले रहे हैं, तो protection के लिए term plan is best होता है।
टर्म प्लान में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है कि टर्म प्लान में क्या होता है कि आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग ओनली यू विल गेट द डेथ बेनिफिट। इसका कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। राइडर्स आर नॉट अलाउड, कोई राइडर्स इसमें अलाउड नहीं होते। टर्म ऑफ कवर शुड नॉट एक्सीड द रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन एज। जो टर्म है कवर की वो रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन एज से ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज अगर 45 की एज है कीमैन की, तो मैक्सिमम वो रिटायरमेंट एज तक ही पॉलिसी की टर्म हो सकती है। सपोज ही इज रिटायरिंग एट द एज ऑफ 58 तो 13 साल का, अगर ही इज रिटायरिंग एट द एज ऑफ 60 तो 15 साल का आप उसको प्लान को ले सकते हैं। नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज यहाँ पे जो ऑनरशिप है दैट इज कंपनी के पास है, तो नॉमिनेशन इसमें नहीं आता। एंड नॉट अलाउड टू एनआरआई एंड कीमैन is not allowed in proprietary form also. Now, let's see the benefit or advantages. It can be used as an instrument for tax planning as it gives income tax saving to the organization. इसको एक टैक्स प्लानिंग टूल की तरह हम यूज कर सकते हैं बिकॉज जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं आप अपने खर्चे में दिखा के इनकम टैक्स से छूट ले सकते हैं। इट स्टेबलाइज द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन इन द मार्केट। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में पोजीशन स्टेबलाइज हो जाती है इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग। कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके वो आपको एडवांटेज नहीं ले सकते बिकॉज इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ ए की पर्सन यू विल गेट ह्यूज अमाउंट। वो ह्यूज अमाउंट को आप अपने ऑपरेशन के लिए फर्दर यूज कर सकते हैं और इसमें आपको कोई एडवांस इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और एनी टैक्स अथॉरिटी को, राइट। इफ की पर्सन रिटायर अर्ली, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर की पर्सन जल्दी रिटायर कर जाता है बिफोर रिटायरमेंट एज तो उस केस में क्या कंडीशंस होगी। तो मैं बताता हूँ ऑन रिटायरमेंट और प्रीमेच्योर रेजिग्नेशन ऑफ द की पर्सन द ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ऑप्शंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन सरेंडर द पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन सिंपली इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकती है एंड आगे के फ्यूचर प्रीमियम देना बंद कर सकती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिसी को असाइन कर सकती है की पर्सन को एज ए बेनिफिट और एज ए लॉयल्टी टू द एम्प्लॉय बिकॉज नॉर्मल इन केसेस में सरेंडर वैल्यू नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे हम खाली टर्म प्लान ही दे सकते हैं और टर्म प्लान में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि टर्म प्लान में आप प्रीमियम पे करते हैं, अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट एनीथिंग। तो ऐसे केसेस में सरेंडर वैल्यू नहीं होती है तो कंपनी ये कहती है कि ठीक है जो भी प्रीमियम हमने आज तक दिया है आज के बाद आप इसका प्रीमियम दीजिए और जो अगर इसमें कोई मिसहैपनिंग पे पैसा आएगा वो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन, इफ द पॉलिसी आफ्टर अटेनिंग द सरेंडर वैल्यू इज एंडोर्स्ड टू द की पर्सन द सरेंडर वैल्यू इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आईटीआई। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अंडर सेक्शन 17 एक परक्विजिट एक्स्ट्रा बेनिफिट का सेक्शन है। कंपनी से जो भी अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो अंडर सेक्शन 17 में काउंट होता है। अगर इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है और पॉलिसी को असाइन कर दिया है तभी ये एम्प्लॉय के हेडवे एज ए सैलरी काउंट होगा, अदरवाइज इट वोंट बी काउंट इन द हेड ऑफ एम्प्लॉय। So that's it from my side and I hope you'd like this video और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने इंफॉर्मेशन या आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। तो आगे भी मेरी वीडियो को देखते रहिए और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।